Hello students, today we are seeing day 3 of class 5 EVS unit number 5, that is natural disasters. Okay, in this unit, in the previous video we have seen about natural disasters. हमने इसके पहले के वीडियो में natural disaster का मतलब समझा है. What is it? A natural disaster is a sudden accident that cause डैमेज टू प्रॉपर्टी, लाइफ एंड नेचर. ठीक है, हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर? Natural disaster is a sudden accident that can cause damage to property, life and nature. Examples of natural disasters are what? Examples are earthquake, tsunami, volcanic eruptions. Okay, these are examples of natural disasters. Let us move further. What do you mean by earthquake? Earthquake is a type of natural disaster जो हमने पहले स्टडी किया है. Earthquake, a sudden shattering of what? Of earth due to violent movements inside the earth is called earthquake. Okay, earthquake is a sudden shattering of earth due to violent movements inside the earth is called earthquake. Earthquake होता किस वजह से है? It is caused by the sliding. Earthquake is caused by what? It is caused by the sliding of tectonic plates. आपको याद है मैंने tectonic plates एक्सप्लेन किए थे आपको. Tectonic plates where the flat surfaces from which the crust of earth is made. Okay, so what is earthquake? Earthquake is caused by sudden shattering. और shattering किस चीज की होती है, किस वजह से होती है? तो it is because of the sliding of tectonic plates. जो अर्थ बड़े बड़े tectonic plates से बने हुए हैं जो कि लावा के ऊपर या मोल्टन रॉक के ऊपर फ्लोट हो रहे हैं, तो ड्यूरिंग मोशन ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में स्लाइड होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस स्लाइडिंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर earthquake is occurred. Okay, it is caused by the sliding of tectonic plates with respect to each other. इसके बाद में हमने देखा था इफ यू वांट टू मेजर अर्थक्वेक व्हाट यू यूज द रिक्टर स्केल जिसकी वैल्यूज होती है 0 से लेके 10 तक के. ओके, जितना हायर इसकी रिक्टर स्केल की वैल्यू उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, आपका अर्थक्वेक होता है. ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन रिक्टर स्केल. उसके बाद में मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, अर्थक्वेक अगर आपको मेजर करना है तो विच इंस्ट्रूमेंट यू प्रेफर? यू यूज सिस्मोग्राफ. एंड सिस्मोग्राफ के ऊपर से क्या मिलता है, एक पैटर्न मिलता है आपको जो अर्थक्वेक मेजर करने के बाद में, जिसके ऊपर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो कितनी कैसी है. तो वो जो पैटर्न है, द पैटर्न ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्मोग्राफ, वी कॉल इट एज सिस्मोग्राम. वो पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राम बोलते हैं. ओके, उसके बाद में लेट अस मूव फर्दर. फोकस मीन्स व्हाट इज फोकस? फोकस इज the underground point at which this earthquake starts. That point where the disturbance occur first is called as focus. This point is called as focus. और वो पॉइंट के ऊपर अर्थ के सरफेस के ऊपर जहाँ पे इसका सेंटर होगा, that point is called as epicenter. That point is called as epicenter. Focus, the point underground where the disturbance occurred first. Epicenter, the point on the earth's surface which lie above the focus. Okay, इसके बाद में in the previous video हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? Because all these questions were part of your homework. तो if you want to check your homework you can check this from these points. Okay, what are effects of earthquake? Earthquake के effects में आते हैं shaking of building, collapsing of building, cracks on road and landslides. Okay, ये चीज़ें होती है अर्थक्वेक के वजह से. लेट अस मूव फर्दर. प्रिकॉशंस, अगर आपको अर्थक्वेक को प्रिवेंट करना है, नहीं कर सकते हम अर्थक्वेक को, ये चीज़ जो है दैट इज़ ए नेचुरल थिंग, नेचुरली ऑकरिंग थिंग, वी कैन नॉट स्टॉप इट. हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे सराउंडिंग में अर्थक्वेक आता है तो हम अपनी जान बचाने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं. वॉट वी शुड डू? दे आर कॉल्ड एज प्रिकॉशंस. नंबर 1, evacuate the building
एंड मूव टू ओपन स्पेस। जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो उसको फौरन इवैक्यूएट करो, खाली करो। एंड मूव टू द ओपन स्पेस। किसी पोल के, ट्री के नज़दीक खड़े नहीं रहना है। यूज स्टेयर्स, डू नॉट यूज लिफ्ट्स। एंड ड्रॉप टू ग्राउंड अंडर सम हार्ड थिंग लाइक टेबल। अगर बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, बिल्डिंग में रहना कंपलसरी है, घर में रहना कंपलसरी है, तो एटलीस्ट यू शुड कवर यूर सेल्फ विथ समथिंग हार्ड लाइक ए टेबल और बेड, सो दैट अगर आपके बिल्डिंग का रूफ गिरता है तो आपके सर के ऊपर ना गिरे और आपकी जान बच जाए। ओके, सो दीज वेर द प्रिकॉशंस यू टूक वाइल और ड्यूरिंग earthquake. Okay, let us move further. This is our today's topic, that is tsunami या tidal wave. Tidal waves आप सभी ने देखी है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर आप बीच के ऊपर गए हो कभी, तो बीचेस में क्या होते हैं, बीच सी के सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ सी these kind of waves are formed, है ना। ये जो waves है, these waves are called as tidal waves. ये waves क्यों फॉर्म होती है अर्थ के ऊपर? These waves are formed by the combined effect of gravitation force between the sun, moon and the earth, the rotational movement of the earth and wind. ओके, ये तो मेन फैक्टर है इसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन, मून एंड अर्थ, ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, और टाइडल वेव्स फॉर्म होने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ का रोटेशनल फोर्स अल्सो, और जो कंटिन्यूस रोटेट हो रही है, और एट द टाइम ऑफ रोटेशन देयर इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अभी अर्थ का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे हमने नीचे ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो सन है, सन का फोर्स अर्थ के ऊपर एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सन क्या कर रहा है, इट इज कंटिन्यूसली पुलिंग द अर्थ टूवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। तो जो अर्थ का सबसे क्या बोल सकते हैं हम, फ्री ऐसे पार्ट जो है अर्थ का, वो क्या होता है, थोड़ा सा पुल होता है सन की तरफ, जिसमें आता है वाटर, है ना। सी में, ओशियन में जितना भी वाटर है वो वाटर के ऊपर, सॉलिड जो जमीन है, जमीन के ऊपर उसका इतना इफेक्ट नहीं दिखता है, बट वाटर के ऊपर यू कैन सी द इफेक्ट। एट द सेम टाइम मून ऑल्सो ट्राइज टू एक्सर्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन दिस ओशियन वाटर, और ये दोनों के ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड ऑन ओशियन वाटर, है ना। ओशियंस जो होते हैं, मतलब अगर आपने ओशियन को देखा, अगर दिन के समय में ओशियन देखा आपने, सपोज कि ये ओशियन है, ओशियन का वाटर यहाँ तक के है और इसके आगे की पूरी क्या है, सॉइल है। ये अगर आपने दिन में देखा है, तो जैसे जैसे इवनिंग होने लगती है वैसे वैसे वाटर की लेवल जो है सी में बढ़ने लगती है ना। जब वाटर की लेवल ज़्यादा, मतलब ज़मीन ज़्यादा अंदर जाती है, तो दिस इज कॉल्ड एज हाई टाइड, एंड दिस वन जब वाटर की लेवल कम होती है, दैट इज कॉल्ड एज लो टाइड। दिस फॉर्मेशन ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड आर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून एक्टिंग ऑन द ओशियन वाटर ऑफ अर्थ। ओके, सो ये रीजन है जिसके वजह से अर्थ के ऊपर क्या फॉर्म होती है, टाइडल वेव्स फॉर्म होते हैं। टाइडल वेव्स, what is the meaning of tidal wave? Tidal wave means the rise. Tidal wave means rise and fall of sea waves. Rise and fall of sea waves, this is called as tidal wave. ये जब smaller होती है ना, when these are the height of tidal waves or sea waves is small, then it do not cause any problem. और ये तो डे नाइट फॉर्म होती ही रहती है। आप सी में को अगर देखते हो तो वो बिल्कुल साइलेंट कभी नहीं होता है ना। छोटी छोटी टाइडल वेव्स उसमें हमेशा फॉर्म होती रहती है। ओके, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, बट समटाइम्स व्हाट हैपन, समटाइम्स देयर इज वोल्केनिक इरप्शन इनसाइड द सी और देयर इज अंडर वाटर अर्थक्वेक। सपोज ओशियन के अंदर, ये आपका ओशियन है, ओशियन के सरफेस के नीचे जो सॉइल है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक का सेंटर जो है आपका, अगर वो सी के नीचे है, एट द टाइम बिकॉज ऑफ दिस द सॉइल हियर स्टार्टेड वाइब्रेशन, है ना। दिस सॉइल
सॉइल वी कैन नॉट सी सॉइल, देयर विल बी रॉक्स अंडर सी। ये रॉक्स के अंडर का ये पॉइंट जो है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा और इसके वाइब्रेशंस धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ओशियन के वाटर के लेवल पे भी स्प्रेड होंगे ना। तो ये जो है यहाँ पे जो आपका फोकस है, फोकस के ऊपर का जो पॉइंट है ये वाटर का, यहाँ पे बहुत छोटी सी वेव प्रोड्यूस होती है। द वेव इज वेरी स्मॉलर इन साइज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और जैसे जैसे ये वेव ग्राउंड की तरफ बढ़ती जाती है ना, टूवर्ड्स द सी शोर, इसका जो डायमेंशन है ये बड़ा बड़ा होते जाता है। ओके, और मतलब हम इसको दूसरे डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। देखो सपोज यहाँ पे आपका ईपी सेंटर है, यहाँ पे वेव जो फॉर्म होती है वो बहुत कम हाइट की होती है, और जैसे जैसे ये सी शोर के डायरेक्शन में बढ़ती जाती है ये वेव बहुत बहुत बड़ी होती जाती है। इस वेव को आप जायंट किसी राक्षस जितनी बड़ी वेव, आपको ऐसे लगता ही नहीं कि वाटर है, ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी वॉल है वाटर की जो सी शोर की तरफ, समंदर किनारे की तरफ, कोस्टल रीजन की तरफ आ रही है। ओके, सो दिस वेव, दिस जायजेंटिक वेव, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वी कॉल इट एज सुनामी। इसे आप क्या बोलते हो, सुनामी बोलते हो। और डेफिनेटली ये वाटर जब सी शोर पे आएगा, सी शोर से इसकी जब टक्कर होगी, इमेजिन करो कि ये आपका सी शोर है और ये बड़ा सा वाटर का वॉल आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रही है। तो ये वॉल जब सी शोर से टकराएंगी तो वापस जाते वक्त ये सिर्फ पानी थोड़ी ना लेके जाएंगी, है ना, ये साथ में लेके जाती है। कोस्टल रीजन में जो जो था वो सब पानी में बह के चला जाता है। मतलब इसमें रोड्स बह जाते हैं, कार्स बह जाते हैं, व्हीकल्स बह जाती है, ट्रक्स बह जाते हैं, है ना, बड़े छोटे घर, घर के अंदर के सामान, सब कुछ ये क्या करती है, अपने साथ वापस लेके जाती है। सो दैट इज वाई सुनामी इज ए ट्रिमेंडस डेंजरस नेचुरल डिजास्टर। ओके, इस रीजन की वजह से सुनामी क्या है, इट इज ए डेंजरस नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, फिर से इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम। व्हाट इज सुनामी और टाइडल वेव? इट इज द राइज और फॉल ऑफ सी वेव्स। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस? Gravitation force between the sun, moon and the earth, because of which high tides and low tides are formed. Other causes are volcanic eruption and underwater earthquake. Small waves are generated on the surface of the sea. These waves move towards the sea, and during the process they are converted into gigantic waves, which is called as tsunami. These waves are like a high building wall. Okay, हाई जैसे पानी की बहुत बड़ी वॉल जैसे फ्लो हो रही है, इस तरह से सुनामी की वेव दिखती है। What are different effects of tsunami? सुनामी के इफेक्ट्स क्या है? There is a lot of destruction on the life of seashore. Seashore means समंदर किनारा. There is a tsunami destroy the life on the seashore. सबमर्जेस द लो लाइन कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरिया जिसकी हाइट कम होती है, ये कोस्टल एरिया जो है पूरा क्या जाता है, वाटर के अंदर मर्ज हो जाता है, वाटर वहाँ पे घुस जाता है, पानी घुस जाता है वहाँ के घरों में। एंड इट डिस्ट्रॉय ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस एंड कैरी ऑल द थिंग्स विच आर ऑन द रोड और इन ओपन स्पेस along with itself. Okay, so these are effects of tsunami. अभी सुनामी को भी हमें रोकना पॉसिबल है क्या? नहीं। जनरली सुनामी और सुनामी हो या ये जो वेव्स है, जो स्टॉर्म्स, ये जो समंदर में आते हैं, तो जनरली उससे कुछ घंटों पहले आपको अलर्ट मिल जाता है। विंड के स्पीड के वजह से हम अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे कुछ स्टॉर्म जैसा सुनामी आने के चांसेस है। सुनामी का तो डेफिनेटली आपको अलर्ट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर जो है वो जनरली सी के बहुत अंदर होता है ना, और आप वो वेव को आने के लिए कुछ समय लगता है, तो यू गेट द alarm or alert of tsunami. What you have to do is you have to take care of yourself, follow all those instructions given by them and try to save your life as well as the life of others. Okay, so these are safety measures. What are they? Follow warnings and instructions telecasted by authorities. Okay, that is the safety measure you can take during tsunami. Okay, होमवर्क देखने से पहले सुनामी के कुछ पिक्चर्स देख लो. See, this is tsunami.
ये जो है सी की, मतलब देखो ये वेव जो है वाटर वेव कितनी बड़ी है साइज में, है ना। ये वाटर अगर ज़मीन के ऊपर गिरेगा तो कितना डिस्ट्रक्शन करेगा ना। सी दूसरा पिक्चर देखते हैं। अभी ये साइज देखो आप, ये बाजू में क्या है, ब्रिज जैसा दिख रहा है ना, देयर इज सम प्लेस बिल्डिंग एंड दिस इज ए सुनामी वेव। उसकी हाइट बिल्डिंग के हाइट के ऊपर से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ये देखो सुनामी की वजह से होने वाला डिस्ट्रक्शन, ये जो वेव है रोड के ऊपर जा रही है ना, वाटर वेव। ये हमारा जब एक क्या बोलते हैं, हमारी जो साउथ बॉर्डर है वहाँ पे ये केरला साइड का पिक्चर है सुनामी का। देखो सुनामी की साइज देखो और उसके आजू बाजू के बिल्डिंग्स की साइज देखो। अब ये सुनामी की जब वेव वापस जाएगी तो कितना डिस्ट्रक्शन कर चुकी होगी ना। हाँ, so that is what we call as tsunami. Okay, now let us move to our homework. This is your science homework, today's homework. You have to solve all these questions in your notebook. ठीक है, नोटबुक में सॉल्व करो, और जब मैं होमवर्क मांगूंगी आपको सभी, मतलब नोट्स मांगूंगी ये चैप्टर खत्म होने के बाद में, तो ये सारे जो सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस हैं मुझे आपके PDF फाइल में दिखने चाहिए। ओके, चलो स्टॉप करते हैं, बाकी का कल देखेंगे।